Class 12C, good morning to all of you. So today I will discuss the chapter number 3, admission of a partner, partnership, third chapter of partnership. So question number 7, practical question I will discuss today. So this is a very important question for you people. So question number 7 is A and B sharing profits and losses in the ratio 3:2. It means two partner named A and B. The profit sharing ratio were 3:2. It means 3 by 5 and 2 by 5. Clear? 3 by 5 and 2 by 5. So the next is they admitted as C as a new partner for 1/3 share in a profits. So they admitted C as a new partner for 1/3 share. Clear? So what is the question? 1/3 of his share in profits of the firm which he acquired from A and B in the ratio of. This is a very important line. Important line in this question. In this question, this is a very important line. Which he acquired from. Which he acquired from A and B in the ratio of 2:3. 2:3 means 2 by 5 and 3 by 5. Clear? 2:3. After some time, they admitted D as a new partner for 1/5 share in the profits, which he acquired equally from A and C. So first of all, हम लोग A, B, C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं, उसके बाद D का डिस्कशन करेंगे. ठीक? So first of all, then the new profit sharing ratio of ABC, calculation of new profit sharing ratio of ABC. Clear? So the line is very important line which he acquired from A and B in the ratio of 2:3, means 2 by 5 and 3 by 5. So ये क्वेश्चन कैसे होगा? C acquire from A. C acquire from A. C acquired from A. So the question is which he acquired from A and B in the ratio of 2 by 5 and 3 by 5. So 1/3 of 2 by 5 means 2 by 15. C acquired from B 1/3 of 3 by 15. तो हो जाएगा आपका कितना? 1/3 of 3 by 5. It means 3 by 15, 2 by 15 and 3 by 50. Clear? So C acquired from A 1/3 of 2/5. 1/3 which he acquired from A and B in the ratio of 2 by 5 and 3 by 5. So 1/3 of 2 by 5, 2 by 15, 1/3 of 3 by 5, 3 by 50. Clear? C acquired from A, C acquired from B. Now the next important thing, अगर C ने ले लिया, किससे लिया? A और B से लिया, यानी A ने कितना हिस्सा दे दिया? 2 by 15, B ने कितना हिस्सा दे दिया? 3 by 15. तो हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे? A's new profit. So A का ओल्ड रेशियो था 3 by 5 माइनस 2 by 15. 2 by 15 उसने दे दिया, तो A के पास कितना बचा? टोटल हो जाएगा इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? टोटल एलसीएम 15. 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 15 1 जा 15, 1 2 जा 2, यानी 7 by 15. क्लियर? सो A का जो न्यू रेशियो होगा वो 7 by 15 होगा. अब हम B का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं. यहाँ लिखिएगा A's न्यू रेशियो. A's न्यू रेशियो. ठीक? B's न्यू रेशियो. B's न्यू रेशियो. क्लियर? सो A's न्यू रेशियो 7 by 15, B's न्यू रेशियो. अब B का न्यू रेशियो कैसे निकालें? B का ओल्ड रेशियो 2 by 5, जिसमें से उसने कितना दे दिया? 3 by 15. तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 15. 5 3 जा 15, 3 2 जा 6,
15 1 जा 15, 1 3 जा 3, इट मीन्स 3/15। ठीक है, तो बी ने अपने हिस्से में से कितना दे दिया, बी का हिस्सा कितना बचा 3/15। अब हम सी की बात करते हैं। सी के पास रेशियो कितना था 1/3। ठीक है, सो अब हमको ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो हम इसमें 3 में 5 में मल्टीपल कर दें, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ the new profit sharing ratio of A, B, C, so the 7/15, 3/15 and 5/15। क्लियर। पहले हम ए बी सी का, जब सी आ रहा था तो ए बी सी का हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। अब डी की बात करेंगे, तो जो जब डी आएगा तो ए बी सी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो जाएगा 7/15, 3/15 एंड 5/15। अब हम डी का कैलकुलेशन करेंगे। डी की लाइन क्या है, सो द क्वेश्चन इज आफ्टर सम टाइम they admitted D as a new partner for 1/5 share in profits which he acquired equally from A and C. Next line. So next line I will discuss. Next line. Second important line. Second important line. So what is the second line? D as a new partner for 1/5 share. D as a new partner for 1/5 share which he acquired from A and C equally। ठीक है, most important line, which he acquired from A and C equally, which he acquired from A and C equally। clear? so अब हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में। so अब जो होगा, जो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला है, अब जब डी आ गया तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा एबीसी का 7/15, 3/15 and 5/15। clear? so now I will discuss D's new share। D as a new partner for 1/5 share in the profit which he acquired equally from A and C। clear? which he acquired equally from A and C। so D का रेशियो कितना था टोटल, D's ratio 1/5। ठीक है, ये D का रेशियो। ठीक, अब हम डिस्कस कर रहे थे D as a new partner for 1/5 share which he acquired equally from A and C equally, which he acquired from A and C equally। ठीक है, तो इक्वली D के पास 1/5 था, यानी इक्वली ले दिया, किसका इक्वली, 1 D's एक्वायर। क्लियर? सो आपके पास ओल्ड रेशियो हमारे पास, इसका मतलब है क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो निकला है वो ए बी सी का ओल्ड रेशियो हो जाएगा। अब जब डी का कैलकुलेशन करेंगे तो डी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, ना कि बी। क्लियर? So I will discuss the topic of he acquired, which he acquired from A and C equal. So how to calculate the new profit sharing ratio? D acquire from Mr. A, यहाँ पे देखना, D acquire from A 1/5, it means 1/10,
इक्वली मीन्स 1/2 ऑफ 1/5, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन, डी एक्वायर फ्रॉम सी 1/2 ऑफ 1/5, 1/10, यानी ए ने दे दिया 1/10, सी ने दे दिया 1/10। अब हमको ए बी सी डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। सो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए बी सी एंड डी। नाउ ए बी सी एंड डी, ए का ओल्ड रेशियो 7/15, बी का ओल्ड रेशियो 3/15, नाउ सी का ओल्ड रेशियो 5/50, ठीक। डी कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए, क्लियर है। डी एज अ न्यू पार्टनर 1/5 विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड सी इक्वली, तो हमने निकाल दिया डी एक्वायर्ड फ्रॉम ए इक्वली 1/2 ऑफ 1/5, डी एक्वायर्ड फ्रॉम सी 1/2 ऑफ 1/5, इट मींस 1/10। 1/10 किसने दे दिया, ए और सी। तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ए का न्यू शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 7/15 में से उसने कितना दे दिया, 1/10, ठीक है। इसी तरह बी न्यू शेयर, बी ने कुछ दिया नहीं तो बी का हिस्सा सेम रहेगा, बी का हिस्सा सेम कितना हो जाएगा, 3/15, जैसे है वैसे छोड़ो, क्योंकि बी ने डी को कोई भी शेयर नहीं दिया, ठीक। अब सी न्यू शेयर, ठीक है, सी ने दिया था, सी न्यू शेयर, सी ने कितना शेयर दिया था, सी का शेयर 5/15, सी ने कितना दिया था, 1/10, ठीक है। डी को दिया था 1/10, ठीक। अब हम इसमें एलसीएम निकाल रहे हैं, तो टोटल एलसीएम हमारा जो बनेगा वो यहाँ 30 होगा, 15 2 जा 30, 2 7 जा 40, 10 3 जा 30, 3 बन जा 3। तो हमारा जो रेशियो बना वो क्या बना, 11/30। ये किसका रेशियो बना, ए का। बी का सेम रहेगा, ठीक। सी का कैसे बनाओगे, 30, 15 2 जा 30, 2 5 जा 10, 10 3 जा 33, so 7/30, clear। so the C's new share 7/30. Now the new profit sharing ratio of Mr. A, B and C, A, B, C and D. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब यहां से नेक्स्ट लाइन, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बाद का है ये, है ना, शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ए का न्यू शेयर 11/30, बी का न्यू शेयर कितना है हमारे पास, 3/15 है, ठीक। सी का न्यू शेयर कितना है हमारे पास, 7/30 है, और 1/5 के लिए हमारे डी आ रहे थे। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो तीनों का, चारों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों का डिनोमिनेटर 11/30, ठीक है, ए का सेम रहेगा, इसमें 2 का मल्टीपल करो, इसमें 2 का, बी में, तो 6/30, यानी 3 2 जा 6, 15 2 जा 30। नाउ सी का तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 30 है। अब डी में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा, 6/30, यही आपका आंसर। 11:6:7:6,